پہاڑ آپ کو پکارتے ہیں، وادیاں آپ کو پکارتی ہیں، اور اس پکار پہ کون کون آتا ہے؟ آج اس پکار پہ یہاں پہ موجود ہیں ہم، کلام کی وادیوں کو چیرتے ہوئے ہم پہنچے سری نگر ٹاپ اور یہاں پہ ڈسان مڈور۔ پورے اکتوبر کو اس گلدستے کو لے کے آنے میں جس کا سہرا ہے وہ ہے شاہد علی۔ اور یہاں پر آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے اور یہ جنت کا نظارہ ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو چنا جاتا ہے کسی نعمت کے لیے، کوئی نعمت دکھانے کے لیے، شاید یہ لوگ بھی وہ چنے گئے ہیں جن کو اس نعمت کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا، اور اس سے آپ فطرت کے قریب آتے ہیں۔ آج مجھے یاد آ گیا آپ کے والدین حافظ اکرام اختر صاحب، تو ان کا یہ پودا لگایا ہوا ماشاءاللہ وہ اب پھلاور ہے۔ آپ کی گفتگو دیکھ کے، آپ کے خیالات دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور آپ کو مزید استقامت بخشے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کی ہمیں کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ کے چینل کا نام ہے نیوز ٹوڈے۔ تو آج کی نیوز تو سب سے بڑی نیوز ٹوڈے یہی ہے کہ ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ تقریباً 5 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، ہر طرف پہاڑ، برف، سبزہ، انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جانے کو دل نہیں کرتا، مگر کیا کیا جائے، زندگی کے دامن وقت میں جتنی کمی ہے اس کے مطابق ہی آپ وقت گزار سکتے ہیں۔ کہ وی شوڈ ایکسپلور دا بیوٹی آف پاکستان، اینڈ یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ پاکستان ہیو اے پوٹینشیل مینی ٹورسٹ پلیسز، اور یہاں پہ جب اسے بات کریں ہیں تو ہر سال یہاں پر ٹورسٹ کی بڑی تعداد آتی ہے، نہ کہ پاکستان بلکہ غیر ملکی جو سیاح ہے وہ یہاں پر آتے ہیں جسٹ بیکاز ٹو پروموٹ دا کلچر، ٹو پروموٹ دا انفلوئنسر، ٹو پروموٹ دا ویژول پاکستان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤنٹین ہے یہاں پر، جھیلز ہیں، اب جسان میڈوز پہ ہیں، اس سے قبل ہم سری نگر ٹاپ پہ تھے، تو ویدر ٹوٹلی چینج ہے۔ فیصل آباد پریس کلب کے ہمارے اس کا شکریہ ادا کروں گا اپنے گروپ لیڈر شاہد علی صاحب کا، جنہوں نے ایک آج کل جیسے دور ہے، مصروفیت کا دور بہت زیادہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی مطلب اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے۔ میں سب سے پہلے پریس کلب کے جو گروپ لیڈر شاہد علی، ان کا شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر، انہوں نے ہم سب کو ایک دوستوں کو ایک خوبصورت گلدستہ ایک شکل میں اکٹھا کیا اور کلام ٹور کا اہتمام کیا ہمارے لیے۔ اس وقت ہم کلام ٹور پہ، اور گلیشیئر ہے اس سائڈ پہ، آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی ہے، اور دیکھ کے یہاں پہ یہی کہا سکتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلے تو میں فیصل آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ اور بالخصوص گروپ لیڈر شاہد علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم یہاں آئے ہیں، یہاں پہ اس وقت کافی سردی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہاف بازو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ مجھے تو آج کل کے جوانوں پہ بڑا ترس آ رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہاف شرٹ ہے تو جوان تو ویسے کپڑے لائی دن پھر لیکن کہ آج کل کے جوان ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ انجوائے کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ہم گروپ لیڈر شاہد علی صاحب اور پریس کلب کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو سال میں تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ہمیں یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور انجوائے کریں۔ اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ایسے ٹور فیملیز کے لیے بھی ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم فیملیز کے ساتھ آئیں، اور یہ اللہ پاک کے نظارے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میڈوز میں آ کے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وادی جنت میں آ گئے۔ میں تو کہتا ہوں فیصل آباد کے لیے، لاہور کے لیے، سب پورے پاکستان کے لیے میرا پیغام ہے کہ سب دوست یہاں پہ آئیں، انجوائے کریں، دیکھیں دنیا کہاں بس رہی ہے، اور اللہ کے کتنے حسین نظارے ہمارے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ یہ وادیاں، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہاں کے چشمے، برف، اور اتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہمارا جیسے کہ گروپ آیا پریس کلب کا، میں سب سے پہلے فیصل آباد پریس کلب کا بھی شکریہ گزار ادا کروں گا۔ کہ جی پاکستان کی مشہور ترین جو ہے وہ پہاڑ وہ کیٹو ہے، لیکن ہم کیٹو کے پہاڑ سیٹو کے پاس آ چکے ہیں۔ یہ سیٹو ہے، یہ جہاں پر جتنی یہ سردی یہاں پر شروع ہو گئی، یہ کیٹو کا پڑا سیٹو یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر سیٹو کے اوپر ہم پہاڑ جہاں ہم مینگو ٹھنڈ کر رہے ہیں، ہم سب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، یہ ہم نے نیا نام اس کو دے دیا سیٹو، کیٹو کا پڑا سیٹو۔ مینو امب لے دے، ان امباں دے وچ گڈیریاں مینو کھا گیا مرضاں تیریاں، تو مینو امب لے دے۔ یہ مینگو ہے، وہ کہنا نہیں امب چپن کی باغ پڑے گی، یہ باغ نہیں یہ ماؤنٹین ہے۔ یہاں پہ بہت سارے دوست ہیں جو دل کے حساب سے ویک ہیں، وہ بیگمات سے بچ کے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت دور چلیں گے۔ جیسے ابھی بی صاحب ہیں، ان کا دل دک دک کر رہا ہے، دل دک دک کرنے لگا۔ ہاں دل دک دک کرنے لگ گیا۔ نہیں وہ تھوڑا سا نا سلیپنگ ہے، اور جو ہے
ਉੱਚੀ ਨੀਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੇਕਿਨ है कि ठीक है। सफर कैसा, साह भी चढ़ गया? अब साह चढ़िया है ना, पता नहीं कितने हजार फुट पे हम हैं यहाँ पे इस टाइम, 10 से ऊपर ही 10,000 फुट की बुलंदी पे। समुद्री से समुद्र तक का सफर और आगे दरिया तक का सफर, बल्कि पहाड़ों तक का सफर बड़ा अच्छा रहा है। और मेरे साथ जो अपनी गुज़श्ता जवानी को याद करते हुए नौजवान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहन के, बल्कि वो साथ मुझे भी रगड़ दिया, अच्छे बड़े नौजवान को। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं दूसरी और तीसरी शादी भी कर सकता हूँ। पहाड़ आपको पुकारते हैं, वादियां आपको पुकारती हैं, और उस पकार पे कौन कौन आता है? आज उस पकार पे यहाँ पे मौजूद हैं हम। कलाम की वादियों को चीरते हुए हम पहुंचे श्रीनगर टॉप, और यहाँ पे निशान मडोर, सबज ग्रीनली हरीली, और इस पूरे टूर को, इस गुलदस्ते को लेकर आने में जिसका सिरा है वो है शाहिद अली, एक ही नाम है। शाहिद साहब से हम बात करते हैं। शाहिद साहब, बड़ा ही जबरदस्त मौसम, 46 डिग्री से 10 डिग्री में आ गए, जैकेट पहनी हुई है, कोई समझेगा समझ नहीं आएगा फैसलाबाद में बंदा रहते हुए जून है या दिसंबर है, तो ये पूरा जो मौसम है कैसा इसको एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम मेंबरान को, और खास तौर पर ऑर्गेनाइजर्स को, और जो आने वाले दोस्त हैं कि जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, और ये वक्त क्या निकाला है कि उनके लिए एक फितरत का हसीन दरवाजा खुल गया अपने वक्त निकालने के बायस। और यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि ये कोई और दुनिया है, और ये जन्नत का नज़ारा है। आप जब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। कहीं आपको बर्फपोश जो है पहाड़ नजर आ रहे हैं, कहीं ग्रीनरी से भरी हुई पहाड़ी नजर आ रही है, और फिर फितरत है कि यहाँ पर बोलती है। आप अगर फील करें तो आपके साथ ये पहाड़ बातें करते हैं। और मुझे इस वक्त कबीर का एक कलाम का मफहूम याद आ रहा है। वो कहता है कि पहाड़ कहते हैं कि तुम्हारे कद इतने छोटे क्यों रह जाते हैं, आओ मेरे दामन में आओ, और तुम इस्तिकामत पसंद बनो तो तुम भी मेरी तरफ बुलंद हो सकते हो। तुम जो है मालिक के हुक्म के मुताबिक चलो तो शायद तुम्हें भी ये बुलंदी नसीब हो जाए। तुम ये नादानी छोड़ोगे तो फिर मेरी तरफ बुलंदी भी हासिल कर सकोगे। ये लगता है कि पहाड़ वाकई हमसे ये बातें कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ जो यहाँ के लोगों की एक सादगी है, यहाँ पर फितरत का एक हुस्न है, और यहाँ पर जब आप देखते हैं कि एक अलग ही जिंदगी का जो है स्टाइल अलग है, और यहाँ पे लोग जो आते हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह कहा जाता है ना कि आपको चुना जाता है किसी नेमत के लिए, कोई नेमत दिखाने के लिए, शायद ये लोग भी चुने गए हैं जिनको इस नेमत को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा। और इससे आप फितरत के करीब आते हैं। आप मालिक की जो एक नज़ारे हैं उनको देखकर मालिक को पहचानने की आपको आसानी होती है। खुदा को कोई देख तो नहीं सकता, खुदा को कोई जो उसकी निशानियों से पहचानना होता है। और ये अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर अपनी निशानियां दी हैं, जो यहाँ पर नज़ारे हैं, उनसे आप यकीनी तौर पर आपको फितरत को पहचानने में, अपने खालिक को पहचानने में, अपने मालिक की आगाही को हासिल करने में, और उसकी क्रिएशन को देखने में। कहते हैं अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, और यहाँ पर खूबसूरती जो है वो खुद बोल रही है। यहाँ पर मालिक की जो है पैदा करते नज़ारे जो है वो अपनी जुबान रखते हैं। यहाँ पर शहरी जिंदगी का शोर गौगा नहीं है। यहाँ पर वो जो एक पड़ी होती है, हलचल सी पड़ी होती है, हर वक्त नफसा नफसी का आलम होता है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सुकूत है। यहाँ पर एक ऐसी, मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह है कि उसको अल्फाज में बयान करना, शायद कोई शायर, कोई आला किस्म का अदीब तो शायद उसके पास तो अल्फाज होंगे, लेकिन हम जैसे आम लोगों के पास शायद वो फितरत को बयान करने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं होंगे। अगरचे अल्फाज खुद हाथ बांध के खड़े होते हैं बात करने के लिए कि हमें भी इस्तेमाल किया जाए इस गुफ्तगू में। और इतनी हसीन, इतना हुस्न, इतना सुकूत, इतनी मोहब्बत जो फितरत की है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने दुनिया के कुछ 36 मुल्क घूमे और मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ। आज तक वल्लाह मैंने इतनी खूबसूरती को ना कभी इंजॉय किया है, ना मैंने इतनी खूबसूरती जो पाकिस्तान अर्ज़े मुक़द्दस अर्ज़े पाकिस्तान को जो है मेरे अजीज वतन को मालिक ने इतनी खूबसूरती से नवाजा हुआ है, और शायद मैंने तो इससे पहले नहीं देखी, और बहुत भी होगी क्योंकि
फितरत का हुस्न का कोई कहते हैं एंड तो है नहीं, इंसान उसको नहीं पा सकता, लेकिन ये जो है एक आला मुकाम है इसका हुस्न, कुदरती हुस्न में अगर आप देखें तो ये मुकाम जो है, मैं समझता हूँ कि हर दोस्त को जब भी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। जी, बड़ी प्यारी बात की, जो पहाड़ है वो बुलाते हैं, पहाड़ से बातें करते हैं और ये समझने वालों के लिए है, जैसे कहा अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की निशानियां हमें लाती हैं। और शायर इन्होंने बड़े 2-3 अल्फाज के अंदर शायर पूरी दुनिया समा दी और बताया कि 36 मुल्क माशाल्लाह इन्होंने देखे हैं, पर उसमें जो पाकिस्तान का हुस्न है, पाकिस्तान की वादियां हैं वो है। और बड़ी प्यारी बात थी जो चुने जाते हैं, वाकई ये इन वादियों को देखने वाले दिल वाले और दिल गुर्दे वाले ही आते हैं। सफर भी नीचे बड़ा खतरनाक था, तो सर ये खतरनाक है सफर है, ये दिल गुर्दे वाले ही आते हैं। गुर्दे दिल सबके पास ही होते हैं, ये हिम्मत करें जब मालिक हिम्मत देता है ना। देखिए हमारे राना सब दोस्त बैठे हुए हैं और इन्होंने भी माशाल्लाह हिम्मत की और हमेशा हमारे साथ होते हैं, टूर में भी, इंतजामात में भी, और शाहिद अली ग्रुप का ये खास हिस्सा भी हैं और हमारे क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी भी। इन्होंने फाइनेंस की मंजूरी दी इन्होंने और सदर बिलाल लोगों ने, उसकी वजह से ये दोस्त यहाँ पर आए। और मैं समझता हूँ इन दोस्तों का जो मंथूर कबीरा है उसका जिक्र ना किया जाए तो ये नाइंसाफी होगी, और बाकी राना साहब बताएंगे, राना मोहसिन साहब। जी, बाकी राना मोहसिन साहब हम बताएंगे। राना साहब, हसीन वादियां, मजे एंजॉय दोस्त कर रहे हैं और आपने फाइनेंस भी किया, तो क्या कहेंगे, इन वादियों में आना चाहिए? और आज कैसे आपने चूज किया नरान पैगाम के बाद, कश्मीर के बाद कलाम? सही बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे इतना हुस्न है और इतना कुदरत जो फितरत है उसके इंसान इतना करीब हो जाता है कि ये जिंदगी के जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं आपके, हाँ ज़ाहिर है इंसान की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो परेशानियाँ भूल जाता है। मैं सब अपने जितने भी हम वतन है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद वालों को दावत दूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास फाइनेंस हो, तो ज़रूर यहाँ पे आए। यहाँ पे जिंदगी जो है इतनी खूबसूरत है कि अल्फाज नहीं। और ख़ास तौर पे मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का और ग्रुप लीडर जनाब शाहिद अली का शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद हम सब लोग हैं जो हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली यहाँ तक पहुँच सकें, तो उनकी मेहरबानी है कि ऐसे लोगों को भी यहाँ ले आए हैं जो हम अफोर्ड नहीं करते। हाँ, यहाँ पे तकरीबन 60 लोगों का एक गुलदस्ता जमा है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये हमें मौका फराहम किया कि हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचा सकें। आज मुझे याद आ गया आपके वालिदैन हाफिज इकराम अख्तर साहब, तो उनका ये पौधा लगाया हुआ माशाल्लाह वो अब फलावर है। आपकी गुफ्तगू देख के, आपके ख्यालात देख के मुझे खुशी हुई है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और आपको मजीद इस्तकामत बख्शे कि आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, आप उनकी हमें कमी महसूस नहीं होने देते। आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब ने चंद बातों पे बड़ा जबरदस्त जखीरा कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा प्यारा गुलदस्ता है जो कि इकट्ठा लेके आए हैं। और आमतौर पे तो सर जी 5-6 बंदे इकट्ठे नहीं होते, यहाँ पे माशाल्लाह 60 बंदों का गुलदस्ता, अगर बड़ा प्यारा माशाल्लाह गुलदस्ता है। साथ साथ उन्होंने याद किया मेरे किबला वाला हाफिज मोहम्मद इकराम अख्तर को, उनकी भी बड़ी मोहब्बतें हैं और ये सब ये उनके दोस्त हैं, उनके शागिर्द हैं, बड़े हैं, जो मुझे हमेशा उनकी कमी महसूस नहीं देते। इनसे जब मिलते हैं तो उनकी यादें ही होती है और उनकी बातें होती है। तो मैं एक दफा फिर प्रेस क्लब का और सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार राना साहब का, आपकी मोहब्बत। जी हाँ, आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ। बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हमारे साथ, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे सैयद खावर साहब जो कि माशाल्लाह बोल न्यूज़ पंजाब के हेड भी हैं और दोस्तों के दोस्त, भाइयों के भाई, और इनकी बड़ी मोहब्बत होती है कि ये हर साल जो टूर निकलते हैं उनमें आते हैं। तो हम खावर साहब से बात करते हैं। खावर भाई, जब निकलते हैं हम स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ हमें शॉर्ट टाइम चाहिए, हम निकले, अब यहाँ पे आए, वादियों में आए हैं, हर साल टूर कहीं किया जाता है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि ये जो टूर हम निकले हैं कौन सा बेस्ट प्लेस था और क्या आप रिकमेंड करते हैं फैमिली को? देखिए नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो जैसे जैसे हम वो कहते हैं एक से बढ़कर एक, कभी जुमला बड़ा मशहूर होता था कि जैसे ही हम इस वादी में दाखिल हुए हैं, हर जगह जो है वो मुनफरिद नज़ारा है, हर जगह पे कुदरत के हसीन मनाजर दिखाई देते हैं, हर जगह पे कुदरत का फ़न दिखाई देता है और ऐसे लगता है कि जैसे जिस जगह पे आप रुकते हैं तो लगता है कि दुनिया की खूबसूरत जगह यही है, मगर जब आप आगे बढ़ते हैं तो हुस्न उससे भी मज़ीद बढ़ जाता है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल ये जो है सियाती टूर्स करने चाहिए, इदारों को भी करने चाहिए, लोगों को भी करने चाहिए, फैमिलीज़ को भी करने चाहिए, क्योंकि आप एक स्ट्रेस के माहौल में होते हैं और आप घरेलू कामों में मसरूफ़ होते हैं। स्ट्रेस ना भी हो, आप अपनी लाइफ की रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि आपके लिए उस तमाम वक्त में, टेक्नोलॉजी के दौर में अपने लिए वक्त नहीं होता। यहाँ पर आगे जो है टेक्नोलॉजी भी ज़रा कम साथ देती है और यहाँ पे आके मोबाइल सिग्नल्स कम हो जाते हैं, तो ये है कि आपकी तवज्जो अपने लोगों के साथ रहती है। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यारे दोस्त राजपूत,
आप और ऐसे दोस्तों के साथ ने तो इन नज़ारों को और हसीन बना दिया। और जैसे आपके चैनल का नाम है न्यूज़ टुडे, तो आज की न्यूज़ तो सबसे बड़ी न्यूज़ टुडे यही है कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, बूंदाबांदी भी हो रही है, हर तरफ पहाड़, बर्फ, सब्जा, इंतहाई खूबसूरत मनाजर देखने को मिल रहे हैं, जाने को दिल नहीं करता। मगर क्या किया जाए, ज़िंदगी के दामन वक्त में जितनी कमी है उसके मुताबिक ही आप वक्त गुजार सकते हैं। जिंदगी के दामन में जितना वक्त है हम निकाल सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त टूर है। आप समझ रहे हैं कि क्या फैसलाबाद के लाहौर के अंदर जून में हम जैकेट पहन सकते हैं। खावर भाई जैकेट के अंदर है, खावर को मानेगा जून में अपनी जैकेट पहनना? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मान सकता। जब आप किसी से बात करेंगे तो उसको ये बात जो है एक मजाक के तौर पे लगेगी, मगर जो सियाहत से लगाव रखते हैं या जो जिन्होंने ये इलाके देखे हैं या जो इन इलाकों में आते हैं उनको अंदाज़ा है। अभी आप देखें ना, जून के इलाके में आप जैकेट की बात करें, जून के इलाके में आप बर्फ देख सकते हैं। ये देखें आप इर्द गिर्द आपके तो आपको इर्द गिर्द अपने सारी बर्फ दिखाई देती है। तो ये मेरे मेरे मालिक का कुदरत है, मेरे मालिक की, कि वो चाहे तो जून में बर्फ ठहरा दे, वो चाहे तो सर्दियों के मौसम में तपती धूप निकाल दे। ये उसी के नज़ारे हैं, ये उसी की कुव्वत है, ये उसी की ताकत है। हमें हमेशा उसका शुक्र बजा लाना चाहिए और हमेशा उसकी दी हुई चीज़ों से महसूस होते रहना चाहिए। जी, बहुत प्यारी बात की। हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा उसकी जो दी हुई चीज़ें हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खावर भाई। हम डिसान मडोज पहुंच चुके हैं। बड़ा ही जबरदस्त इलाका है। यहाँ पे 1 माह तक पहले सारी ही बर्फ थी। अभी भी आप बैक साइड पर हमारे देखें तो बर्फ है, और यहाँ से जैसे ऊपर आए मौसम काफी चेंज हो गया है, सर्दी लग रही है और दोस्तों ने जैकेटें और कोट्स पहन ली हैं। हमारे साथ बहुत ही जो एक्टिविस्ट हैं अपना सोशल मीडिया को बड़ा जबरदस्त नजर से देखते हैं, गहरी नजर से इमरान से बात करते हैं। इमरान, ये मौसम जो था फैसलाबाद में शदीद गर्मी थी और अब हम एक शदीद सर्दी में आ गए हैं, तो ये मौसम का जो एक दिन के अंदर ही 24 दिन के अंदर उतार चढ़ाव, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वी शुड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड ये एक बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान हैव अ पोटेंशियल मैनी टूरिस्ट प्लेसेस। और यहाँ पे जब ऐसा बात करें हैं तो हर साल यहाँ पर टूरिस्ट की बड़ी तादाद आती है, ना कि पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की जो सयाह है वो यहाँ पर आते हैं जस्ट बिकॉज टू प्रमोट द कल्चर, टू प्रमोट द इन्फ्लुएंसर, टू प्रमोट द विजुअल पाकिस्तान। आप देख सकते हैं माउंटेन है यहाँ पर, झील्स हैं, अब जिसान मिडोस पे हैं, इससे कबल हम श्रीनगर टॉप पे थे। तो वेदर टोटली चेंज है एज कम्पेयर टू पंजाब। और जैसा कि पंजाब में तो पीडीएम ने कहा है कि शदीद हीट वेव की लहर है, ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमने वियर्ड जैकेट्स जस्ट बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो हाई अपना लो है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए, ये बेस्ट उनके लिए मौका है। उससे 2 माह बाद जब आएंगे तो फ्लड डिवास्टिंग जो केपी की गवर्नमेंट लगा देगी, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, उससे नहीं आ सकता। बड़ा बेस्ट चांस है। ये जून जा रहा है, जुलाई और मिड अगस्त तक यहाँ पर आ सकते हैं। इमरान ने बड़ी जबरदस्त बात की। इमरान ने कहा ये आइडियल मौसम है जब हम यहाँ पे खड़े हैं। ये बेसिकली बड़ी से शुरू हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे आइडियल मौसम है। आप आए, इसको एंजॉय करें। अभी जैसे बता रहे थे, दोस्त से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ये भी अब छोटे छोटे दिखने पौधे, ये 1 माह तक ये बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे और ये उसके बाद यहाँ पे आपको फूल हर तरफ ग्रीनरी, अभी भी ग्रीनरी है तो फूलों वाली ग्रीनरी होगी। तो आप आपको पहले भी डिफरेंट जगह पे रहा है, नारायण का गान रहा है, कश्मीर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि रिकमेंडेड कौन सी जगह बेस्ट है? वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही बेस्ट है। बिल्कुल। देखिए, नारायण हो, इसके साथ साथ बात करें तो ये जो श्रीनगर टॉप हो या मिडोज हो, हर एक इलाके की अपनी खसूसियत है, हर इलाके का अपना टेस्ट है, हर इलाका हर सियाह को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए, बस गवर्नमेंट को थोड़ी प्रोटेक्शन देनी होगी सियाहत को लेकर। केपी के गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो ये इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना जरे मुबादला कमा सकते हैं टूरिस्ट से। आप देखते दुबई देख लें, टूरिस्ट पे उसने पूरी दुनिया को इकोनॉमिक तौर पे अपना किया हुआ है। तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि स्पेशली केपी के में आजाद कश्मीर देख लें, दरिया स्वाद देख लें, दरिया कनार देख लें, झीलें देख लें, झील सैफरन बुक देख लें। अभी भी जो हम पट्टी में हैं केपी के, आप देख सकते मालम जपा, आप इसके साथ साथ श्रीनगर टॉप जो दिसान मिडोज है, ये बड़ा अच्छा है। तो यही रिकमेंडेड वेदर है कि आप 1.5 माह तक यहाँ पे जरूर आए। ये 1.5 माह तक यूज है। और बड़ी अच्छी बात की कि ये जो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा दे दे, रास्ते बड़े खतरनाक भी है, उसको वहाँ पे कोई अगर गवर्नमेंट कुछ कैंप ऐसे बन जाए स्पोर्ट के लिए तो ये जबरदस्त मौसम होगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ दोस्तों का कि उन्होंने यहाँ पे आए और हमें बड़ा जबरदस्त किया। अब मलिक मुस्तफा साहब के पास हम बात करते हैं। मलिक अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आप यहाँ पे आए नौजवानों के साथ, एक और नौजवान का इजाफा, क्या कहेंगे मलिक साहब यहाँ पे? पहली तो बात यह है कि जी अब हम नौजवान नहीं रहे, ठीक है ना जी, आपकी मोहब्बत आप समझते हैं, लेकिन यहाँ तक का सफर करना 12-14 घंटे का और 3-4 घंटे, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और आप दोस्तों का साथ है तो कर लिया, वरना मुश्किल था। यहाँ इमरान असलम जैसे लोग हैं, यहाँ मेरे जैसा बूढ़ा जनाब भट्ट साहब मौजूद हैं, आमर अदरीस भट्ट साहब, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। हम तो आप लोगों को कहते हैं आपकी उम्र, आप एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान देखें यार। स्विट्जरलैंड की बातें करें, इधर किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है।
पाकिस्तान देखें। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे क्लब का, शाहिद अली साहब का। इन्होंने ये तीसरा चौथा टूर है जो अरेंज किया है, इनके हवाले से चलो हम जैसे लोगों को मौका मिल जाता है। नहीं तो जो काम की ज़रूरियात हैं, जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पर काम से वक्त नहीं मिलता, तो वक्त निकल जाता है 2-3 दिन के लिए, साल भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं। साल भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं नौजवानों के नौजवान। मुस्तफ़ा कमाल नहीं, मुस्तफ़ा मलक। इन फ़ज़ाओं में, ठंडी फ़ज़ाओं में, सर्दी लगते हुए, आम खाते हुए, बर्फ़ को एंजॉय करते हुए, बारिश को एंजॉय करते हुए, धूप को एंजॉय करते हुए, एक घंटे में सारे मौसम को एंजॉय करते हुए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे दोस्त शाहिद साहब, ये उभरते हुए स्टार हैं। फैसलाबाद की कोई भी नई अपडेट हो तो आपको शाहिद साहब लाइव मिल रहे होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कह रहे थे आज मूड नहीं है, कल आना, तो मैंने कहा आज ही मूड होगी। शाहिद साहब, आप बहुत बड़े वालिद के बेटे हैं, तो माशाल्लाह आप उनके नाम को ज़िंदा कर रहे हैं और बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ ये मौसम सारा आ रहा है, क्या इसको एंजॉय करेंगे, क्या मैसेज देंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये है कि इस मौसम से पहले मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के हमारे उसका शुक्रिया अदा करूंगा अपने ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब का, जिन्होंने एक आजकल जैसे दौर है, मसरूफियत का दौर बहुत ज़्यादा है, नफ्सा नफसी का आलम है, कोई मतलब इतना टाइम ही नहीं है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब के जो ग्रुप लीडर शाहिद अली, उनका शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर। उन्होंने हम सबको, एक दोस्तों को, एक खूबसूरत गुलदस्ता एक शक्ल में इकट्ठा किया और कलाम टूर का एहतमाम किया हमारे लिए। इस वक्त हम कलाम टूर पे, और ग्लेशियर है इस साइड पे, आप देखें बड़ी खूबसूरती है, और देख के यहाँ पे यही कहा सकते आज का सुबहान अल्लाह। इसलिए कि गर्मी का मौसम है, हम सताए हुए हैं गर्मी के बड़े। फैसलाबाद में बहुत गर्मी है, और घर वालों से जब भी बात होती है बताती हैं गर्मी जोरों पे है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। मैं कहता अल्लाह मियाँ थोड़ी सी सर्दी फैसलाबाद में भेज दो ताकि हम भी सुकून से वहाँ पे रह सकें। थोड़ी सी सर्दी फैसलाबाद ही भेजते हम सुकून से रह सकें। ये भी कहा जा रहा है कि इतनी शदीद गर्मी है कि जो तस्वीरें हैं, हमारी शक्लें हैं, वो एग्जैक्ट हमारे आईडी कार्ड वाले होने वाली है। जी बिल्कुल, इसी तरह मैंने वो पोस्ट पढ़ी थी कि कहते हैं लगता है सप्ली आ गई हुई है, पिछले साल गर्मी इतनी नहीं पड़ी, वो गुस्सा निकाला जा रहा है। चलिए जी, अल्लाह ताला की रहमतें हैं, वो सर्दी भी दिखा रहा है, गर्मी भी दिखा रहा है, ये सारा उसका कुदरत है। आज यहाँ आए, मौसम में आए, शर्ट पहनी, यंग बॉय, ये यंग बॉय क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और बिलखुसूस ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सर्दी है, और आप देख रहे हैं कि मैंने हाफ बाजू की शर्ट पहनी हुई है। मुझे तो आजकल के जवानों पे बड़ा तरस आ रहा है कि ये क्या करते होंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है। आपने हाफ शर्ट है तो जवान तो वैसे कपड़े लाई दिन फिर लेकिन ये आजकल के जवान है, ये आजकल के जवान है, लेकिन बहरहाल बात ये आ गई कि आप यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह थोड़ी सी बर्फ़ की कुछ ठंडी हवाएं हमारे फैसलाबाद की तरफ भी शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहाँ इस वक्त बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है। लेकिन आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मेहनत करते हो, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को भी अल्लाह में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं जी तनवीर साहब का यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखसूस जी तनवीर साहब को मैं कहूँगा आपको मिस किया जा रहा है, अच्छा होता कि आप भी हमारे साथ होते, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत सारे दोस्तों की तरह हमारे जो मुहतरम हैं, हमारे जी तनवीर साहब, उनको मिस किया जा रहा है। अगर वो होते तो 4 चांद और लग जाते। बड़ी मोहब्बत दोस्तों की। हमारे साथ बेग साहब भी हैं। जैसे ही हमने बेग साहब से कहा, बेग साहब ने फ़ौरन ऐनक लगाई, साथ जैकेट पहनी ग्रीन। उन्होंने कहा जी मैं ग्रीन जगह पे ग्रीनली बेग आ गए। बेग साहब ने आम भी खा लिए, अभी वो कहते हैं ना लालो लाल आते हैं, इधर येलो येलो तो ग्रीन ग्रीन। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये इंजॉय करने का मौका दिया, और इसके साथ हम ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब और प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो साल में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हमें ये सहूलत मुहैया की जाती है कि आप आएँ और इन्जॉय करें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसे टूर फैमिलीज़ के लिए भी होने चाहिए कि ताकि हम फैमिलीज़ के साथ आएँ, और ये अल्लाह पाक के नज़ारे हैं। सुबहान अल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेशक अल्लाह पाक जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह ताला जो कर सकता है कोई नहीं सकता। और ये ना सिर्फ इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिलीज़ का भी होना चाहिए। वो भी जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी माएँ जो बड़े स्ट्रेस मॉल में हमें सुबह दोपहर शाम रात तैयार करके बाहर भेजती हैं फ़ौजियों को, और फ़ौज बाहर जंग पे लड़ते हैं। हमारे साथ नदीम राजपूत भी हैं, वो भी सामने खड़े हैं। ये भी रास्ते पे अपनी फैमिली को याद करते रहे। हमारी बहुत ही प्यारी मुहतरम भाभी जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो उनको भी बड़ा मिस कर रहे थे। तो हम नदीम राजपूत को भी कहते हैं ये एक अजीम इंसान, अच्छे दोस्त हैं, मोहब्बत वाले हैं, हर दिल अजीज़ ये हैं, दिल दिल पाकिस्तान। हम इनको भी खराज तहसीन के साथ लव यू।
कलाम की वादियों को चीरते हुए श्रीनगर टॉप से डिसार मडोर से पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त साबर मौजूद हैं। साबर भाई, शदीद गर्मी से तकरीबन सर्दी में आ गए, कोई ये जैकेट पहने फैसलाबाद तो कहेगा 5 दिसंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे जून में जैकेट पहनी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सफर को? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ पे मिडोज में आके तो ऐसे लग रहा है जैसे वादी जन्नत में आ गए। मैं तो कहता हूँ फैसलाबाद के लिए, लाहौर के लिए, सब पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम है कि सब दोस्त यहाँ पे आए, इंजॉय करें, देखें दुनिया कहाँ बस रही है और अल्लाह के कितने हसीन नज़ारे हमारे लिए अल्लाह पाक ने रखे हैं। ये वादियाँ, ये फूल, ये पहाड़, यहाँ के चश्मे, बर्फ, और इतना एंजॉय कर रहे हैं। और खास तौर पे हमारा जैसे कि ग्रुप आया प्रेस क्लब का, मैं सबसे पहले फैसलाबाद प्रेस क्लब का भी शुक्रिया गुजार अदा करूंगा कि वो हमें लेके आए कि ग्रुप की शक्ल में। आजकल तो 4 दोस्त इकट्ठे नहीं होते, यहाँ पे 60-70 लोग लेके माशाल्लाह शाहिद अली ग्रुप लीडर लेके आए हैं और माशाल्लाह उन्होंने लेके आए एंजॉय, हमें खाना पीना, घुमाना फिराना। और जैसे हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, जितना एंजॉय, जितने लफ्ज, खुदा की कुदरत का जितना मेरे पास लफ्ज बयान नहीं कर नहीं सकता, जितने के हसीन नज़ारे हैं। मैं सब दोस्तों को कहूँगा आप ज़रूर आएँ और ये अल्लाह पाक के हसीन नज़ारे देखें। जी फबी अल्लाह रब्बी को मातु का ज़बान, जैसे उन्होंने कहा अल्लाह ताला के हसीन नज़ारे, अल्लाह ताला कौन कौन सी नेमतों को उठलाएंगे और ज़बरदस्त। और साथ साथ बड़ी प्यारी बात की 4 दोस्त इकट्ठे नहीं जाते, यहाँ पे 60-70 का ग्रुप है और ये बड़ा अप्रिशिएटेड है और हम इनको शुक्रगुजार हैं कि ये हर दफ़ा दोस्तों का गुलदस्ता लेके आते हैं और एक बड़ा प्यारा माहौल बनता है और वाकई यहाँ पे ये गुलदस्ता ही होता है और इसको एंजॉय करते हैं। शुक्रिया साबिर। कलाम के हम सफ़र करते हुए डिसान में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त वादी है। अब इस टाइम ये हसीन वादी के अंदर बारिश शुरू हो चुकी है और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दोस्त, हमारे जो हीरो, जो ये हर जो हमारा टूर है बड़ा सक्सेसफुल कराते हैं, वो कहते हैं कि गुमनाम सिपाही होते हैं। ये हमारे साथ वो गुमनाम सिपाही हैं। ये इनको हमें सुबह उठते हैं नाश्ता मिलता है, जैसे लगा हमारी माँ या हमारी बीवी हमें घर में देते हैं दोपहर का खाना, और रात हम ये अखिल भाई को सलूट भी करते हैं। अखिल भाई आई लव यू, आप हमेशा हमारा ख्याल करते हैं और बड़ी मोहब्बत है। तो क्या कहेंगे आप अपने दिल के क्या ख्याल? देखे जी, पाकिस्तान की मशहूर तरीन जो है वो पहाड़ वो केटू है, लेकिन हम केटू के पहाड़ से सेठू के पास आ चुके हैं। ये सेठू है, ये जहाँ पर जितनी ये सर्दी यहाँ पर शुरू हो गई, ये केटू का पहाड़ सेठू यहाँ पर जोर हो चुका है। यहाँ पर सेठू के ऊपर हम पहाड़ जो हम मैंगो ठंडे कर रहे हैं, हम सब जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये हमने नया नाम इसको दे दिया सेठू, केटू का पहाड़ सेठू। हम यहाँ पर मैंगो ठंडे कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम के तमाम हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप बयान नहीं कर सकते। थैंक यू जी। तमाम के तमाम दोस्त बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इमरान दोबारा हमारे साथ है। इमरान, आम, बस आम यहाँ खाने में आम और फैसलाबाद में खाने में आम में क्या फर्क है? आम के पास बैठे नजर आए, ये देखे हुए अभी बताते हैं, ये देखें जी। फैसलाबाद में आम खाते हुए और यहाँ पे कलाम में आम खाते हुए क्या कहेंगे? देखें हम थोड़ा सा पंजाबी में करेंगे। दित्तू मैनू अंब लै दे, इन अंबां दे विच गडेरियां, मैनू खा गई मरजा तेरियां, दित्तू मैनू अंब लै दे। अब ये मैंगो है, वो कहना नहीं अंब चुपन की बाग पड़ेगी। ये बाग नहीं, ये माउंटेन है, आप पकड़े नहीं जाएंगे, खुल के खाएं। इट्स अ माउंटेन, यू कैन एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ केपी, सो जस्ट कम एंड एंजॉय, जस्ट कम एंड एंजॉय। फ्रिज में हम जो है बर्फ के कोले रख के जमाते हैं या बर्फ वैसे ही जमी हुई है, तो बड़ा जबरदस्त ये सफर है और हम आगे आपको लेके चलते हैं। ख्याल रखा जा रहा है जहाँ पे पूरी टीम है, उनकी सेहत के हफ्जाने सेहत के साथ खाना भी दिया जा रहा है और हफ्जाने सेहत के साथ उनकी चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज माशाल्लाह घर भी आप चेकिंग कर रहे हैं, घर भाभी आपको चेक करती हैं, यहाँ दोस्तों को चेक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो दिल के हिसाब से वीक हैं, वो कौन सा दिल है? बेगमात से बच के यहाँ पे पहुंचे हैं और उनको पैगाम दे रहे हैं कि हम आपसे बहुत दूर चलेंगे। जैसे बीबी साहब हैं, इनका दिल धक धक कर रहा है, दिल धक धक करने लगा। हाँ, दिल धक धक करने लग गया। तो टूर कैसे एंजॉय करें, क्या कहेंगे? आप नौजवान है, तो बड़ी उम्र के दोस्तों क्या कहेंगे? टूर जी माशाल्लाह जबरदस्त है, हर साल टूर पे आता हूँ और मेडिसिन लेके आता हूँ। और यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त हैं वो ब्लूजे के मराज में शिकार हो जाते हैं, ज्यादा खाते हैं, वाक नहीं करते। सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से ना हम सफर ज्यादा करते हैं, सफर में रहने की वजह से हो जाता है। डॉक्टर साहब, इंग्लिश वाला सफर है कि उर्दू वाला सफर? ये दोनों सफर मिला के जब चलते हैं उर्दू वाला होता है, वापसी इंग्लिश वाला हो जाता है। इंग्लिश वाला है, ठीक है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया। अब अभी चेक कराया, नॉर्मल है। अच्छा कि नॉर्मल है, तो ये फैसलाबाद तो नॉर्मल नहीं हो, तो यहाँ नॉर्मल कैसे हो गया? नहीं, वो थोड़ा सा ना स्लिपिंग है और जो है उच्ची नीवी जगह पंजाबी जी कहते थे चेहरे पे ना थोड़ा लगता कि पता नहीं कुछ है, लेकिन ठीक है। सफर कैसे? साह भी चढ़ गया? अब साह चढ़िया है ना, कितने हजार फुट पे हम हैं यहाँ पे इस टाइम? 10 से ऊपर ही 10,000 फुट की बुलंदी पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, तो थोड़े से जो हम जैसे लोग होते हैं थोड़ा सा साथ चलने वाले। आज बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत जबरदस्ती बड़ी मोहब्बत थी डॉक्टर साहब की और दोस्तों की मोहब्बतें बांटते हुए जी।
बहुत जबरदस्त हमारे रिपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, ये समुद्री से आए हैं, समुंदर से आए हैं, दरिया की तरफ, दरिया से आए हैं पहाड़ की तरफ। हम कहेंगे सर, समुद्री से समुंदर और पहाड़, दरिया से पहाड़ का सफर कैसा रहा? समुद्री से समुद्र तक का सफर और आगे दरिया तक का सफर, बल्कि पहाड़ों तक का सफर बड़ा अच्छा रहा है। और मेरे साथ जो अपनी गुज़श्ता जवानी को याद करते हुए नौजवान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहन के, बल्कि वो साथ मुझे भी रगड़ दिया अच्छे बड़े नौजवान को। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं दूसरी और तीसरी शादी भी कर सकता हूँ। अभी तो हम तो 4 की तो वैसे ही चल लहरा। ये एक बड़ा अच्छा मौसम है। गर्मियों में जितनी पंजाब में गर्मी पड़ी 42 43 तक जा रही है, यहाँ पे इतना मौसम अच्छा 4-5 बैठे हुए हैं, 5-6 मौसम इस वक्त नहीं। मौसम इस वक्त 10 6 7 या 10 होगा, 10 के करीब होगा। रात को यहाँ पे हो जाता है 4-5। और एक खुश ऐसा सेहत के लिए भी और देखने वाली जगह, पहाड़ों के दरमियान पर्वतों की वादियां। बात ये क्या बात है, क्या पर्वतों की बात? ये पर्वतों की वादियां हैं यहाँ पे। ये देखने जिसने नहीं देखा वो तो मेरे ख्याल में, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह को इतनी हिम्मत दे, कम से कम वो अपने पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों को ये कौन सा लाहौर है? नहीं, ये लाहौर। बात यह है कि जिसने ये नहीं देखा, ये लाके अल्लाह उनको दिखाए। और आप कोशिश करेगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिले तो कम से कम इस इलाकों को अपना और अपने बच्चों को जरूर सैर कराएं। जी, अगर आपको टाइम मिले, अपना और अपनी फैमिली को यहाँ आए, एंजॉय करें और एक्सप्लोर करें। ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है और ये पाकिस्तान जिंदाबाद।